Hello, dear friends of 10th Standard English Medium. I hope you are all fine. And once again, I welcome you back to my class of English. And today we are going to discuss a short story of our textbook, Footprints with Our Feet. Okay? And the story that we are going to discuss is The Midnight Visitor, which has been written by Robert Arthur. ओके बहुत ही बढ़िया स्टोरी है ये मिडनाइट विजिटर। और आपके टेक्स्ट बुक का नाम, क्योंकि हमारे दो टेक्स्ट बुक है, एक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा फुटप्रिंट्स, तो फुटप्रिंट्स में से ये स्टोरी है। थर्ड स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर, जिसको लिखा गया है रॉबर्ट आर्थर के द्वारा। बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द स्टोरी, लेट मी try and briefly introduce the writer Robert Arthur. Robert Arthur was born in 1909 and he died in 1969. Okay, and he was actually born in Philippines. Okay, and then at a very young age he migrated to USA, America. He spent several years of his life in America, and then ultimately he died in America also. Okay, so basically we can literally say that he was an American writer. He used to write about the mystery stories, detective stories, short stories and fictions, and he also used to write about the radio series. Okay, and he has won plenty of awards, especially for writing the mystery stories for the radio and for books. Okay, तो ये था राइटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम सीधा डिस्कशन करते हैं स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी का जो नाम है मिडनाइट विजिटर, तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है कि थोड़ा सा ये स्टोरी में मिस्ट्री का एक एलिमेंट है। मिस्ट्री, सस्पेंस, द काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं कि जो हॉरर तो नहीं कह सकते, लेकिन वी कैन लिटरली से दैट द सॉर्ट ऑफ टेरिफाइंग एक्सपीरियंसेस, strange happening, so many twists and turns. Okay, at least क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है तो ऑब्वियसली एक आध दो ट्विस्ट होते हैं, कोई इतने ज्यादा तो नहीं होते हैं, तो ऐसा एक स्टोरी है। बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी, लेट मी गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स। स्टोरी के जो कैरेक्टर हैं बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले ऑसबल, हु इज अ सीक्रेट एजेंट। वो एक सीक्रेट एजेंट है, ऑसबल उसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है ऑसबल, जो एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है। द सेकंड कैरेक्टर इज फॉलर, हु इज अ यंग राइटर, हु इज अ young aspiring writer who is looking to write different attractive articles or short stories or real life experiences, okay, in order to gain popularity, in order to earn some name and fame and money also. तो ऐसा एक young aspiring artist है, writer है, Fowler. The third character is Max. Max is another secret agent. Max भी जो है वो एक दूसरा डिटेक्टिव एजेंट है, डिटेक्टिव है, और एक्चुअली उसका यहाँ पे जो रोल है वो ऑब्वियसली एक नेगेटिव रोल है। और एक छोटा सा कैरेक्टर है लास्ट में, हेनरी वेटर, ठीक है, जो स्टोरी में बहुत ही थोड़ी देर के लिए वो आते हैं। ओके, तो ये स्टोरी के चार मेन कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। एक्चुअली तीन ही है, हम यहाँ पे गिनती जो है वो पे एक्चुअली तीन ही कैरेक्टर्स की करेंगे ना। As far as a human intelligence goes, हमारी जो सोच है वो कुछ इस तरह से होती है कि लाइक जिसके पास बहुत ही अच्छा लुक है, या तो फिजिकली जो इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जो इंसान के पास बहुत सारे पैसे हैं वो इंसान ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इंटेलिजेंट ऐसा माना जाता है। बट दैट इज नॉट ट्रू। In movies or in novels or in fictions or in so many short stories or in serials, TV serials also, you might have seen that when we talk about a detective or a secret agent, then what sort of picturing that comes in our mind? We can have so many examples, okay, from the stories, imaginative stories, and some stories from the movies also, that a secret agent or a detective is a kind of a young and a strong person, physically well-built person, looking handsome, and he would be occupied by so many support staff members,
and probably some beautiful girls also who are frequently passing on the different messages related to his jobs, and time and again he would be involved in doing so many stunts also, life-threatening stunts, deadly stunts, in order to win against the villain of the story. ऐसा होता है डिटेक्टिव का, जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा पिक्चर आता है कि एक हीरो टाइप का बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग ऐसा इंसान होता है जो किसी भी मुसीबत में जो अगर कोई इंसान फंसा है तो उसको बाहर निकाल देता है और लाइक इम्पॉसिबल जैसे स्टंट करता है. एंड इन केस इफ यू आर फेमिलियर विद some of the movie series or serials like Sherlock Holmes और जेम्स बॉन्ड, ठीक है, तो उसमें आपने देखा ही होगा कि कितना हैंडसम जो है वो हीरो दिखता है. उसका सपोर्ट स्टार जो स्टाफ मेंबर होते हैं उसमें ब्यूटीफुल गुड गर्ल्स भी होती है. एंड सम डिटेक्टिव्स लाइक जेम्स बॉन्ड, दे आर ऑक्यूपाइड विद लेटेस्ट गैजेट्स आल्सो. उसकी कार में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, कार के अंदर फिट की गई बहुत सारी बंदूकें वगैरह होती है जो कंप्यूटर से ऑपरेट होती है, और इधर उधर चारों तरफ पता नहीं कहीं पे भी वो गोलियां चला सकता है और कैसी भी मुसीबत में से वो बाहर आ जाता है. ऐसा डिटेक्टिव, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अगर ऐसी खासियत है कोई इंसान में तभी जाके वो डिटेक्टिव बन सकता है, वरना नहीं बन सकता है. ओके, तो और फिर उसका ऑफिस, उसकी काम करने की जो जगह है वो भी बहुत अच्छी खासी, बहुत बढ़िया होती है एकदम, ठीक है, और बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं. दिस इज द काइंड ऑफ प्राइमरी नोशन अबाउट अ डिटेक्टिव और अ सीक्रेट एजेंट. ओके, बट इन दिस स्टोरी द राइटर हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट इट इज नॉट ट्रू. ओके, सर फिजिकल स्ट्रेंथ से या तो शारीरिक ताकत बता के ही कोई डिटेक्टिव नहीं बन सकता है. A human intelligence, the brain power is the most important thing in order to be powerful, in order to solve the mystery behind any particular incident. And sometimes it may happen that you are suddenly trapped in a very awkward situation and you have a very less time to come out from that situation. ठीक है, बहुत ऐसा कई बार होता है कि बहुत कम समय में आपको एक बहुत ही भयानक मुसीबत में से अगर बाहर निकलना है तो आपके पास बहुत समय नहीं है. ओके, या तो बिल्कुल समय नहीं है, तो उस वक्त आपका जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वही काम में आता है. शारीरिक ताकत कई बार काम में नहीं आती है. ये जो थ्योरी है वो राइटर यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं, राइटर रॉबर्ट आर्थर, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन गुड लुक्स और फिजिकल स्ट्रेंथ. सो if we go back to the story once again, ये जो कैरेक्टर है पॉसिबल स्टोरी का, ठीक है, he is not looking handsome, he is looking fat, he is a fatty stuff, right? And obviously he is not looking handsome, and still he is a detective, he still is a kind of secret agent. उसका ऑफिस भी बहुत जोरदार नहीं है, उसके पास स्टाफ मेंबर्स भी नहीं है. He has an office situated on the 6th floor of some, medium-sized or average-sized hotel of Paris. ये पेरिस में रह रहा है. ये पॉसिबल जो है डिटेक्टिव सालों से पेरिस में रह रहा है. Probably for about more than 20 years he has been living in Paris. Okay, so many years back he migrated from America, और अमेरिका का जो बॉस्टन सिटी है वहां से माइग्रेट होकर वो पेरिस में रहने के लिए आए थे. लेकिन इतने सालों तक पेरिस में रहने के बावजूद भी उनको फ्रेंच लैंग्वेज ठीक से नहीं आती है. So a little bit of French language and a little bit of German language he is able to speak. Okay, but otherwise he mainly speaks the English language, which is full of American accent. ठीक है, तो इतना सालों तक रहने के बावजूद भी उनको ये लैंग्वेज, तो नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो एक ऐसा इंप्रेशन हमारे दिमाग में पड़ती है. ना ही उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, ना ही उसके पास अच्छा गुड लुक है, और इतना सालों तक रहने के बावजूद भी एक अच्छा ऑफिस उसके पास नहीं है. प्लस लैंग्वेज इसकी जो लोकल यहाँ पे बोली जाती है वो भी ठीक से नहीं बोल पा रहा, तो ये इंटेलिजेंट भी नहीं है, ऐसा हमारे दिमाग में इंप्रेशन पड़ता है. बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टोरी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड
that when the time comes, how he is able to show his intelligence and how he is able to cope up with the situation and how he is able to defeat the villain of the story. ठीक है, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा. जो दूसरा कैरेक्टर है मैक्स, जो है वो एक राइटर है. In the story, when the story begins, okay, Ausable is accompanied by this fellow Fowler. Actually Fowler राइटर का नाम है. ठीक है, तो उसके साथ वो अपने जो 6th फ्लोर पर जो ऑफिस है होटल के 6th फ्लोर पे एक ही रूम का एक ऑफिस है, वहां पे वो आ रहे हैं सीढ़ियां चढ़ के. एंड ऑब्वियसली बिकॉज फॉलोअर वाज अबाउट टू सी द ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो ही वाज एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स अबाउट द ऑफिस, कि एक अच्छा खासा ऑफिस होगा, वहां पे एक अच्छा खासा फर्नीचर होगा, शायद थोड़े बहुत स्टाफ मेंबर्स भी होंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था. ओके, रास्ते में थोड़ी बहुत कैजुअली बातें होती है जिसमें ऑसिबल है जस्ट कैजुअली उनको बता देता है कि लाइक जो मिसाइल से रिलेटेड जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसके पास आज आने वाले हैं. ठीक है, और सेफ्टी के लिए उन्होंने पुलिस को भी इतला करके रखी है कि लाइक पुलिस को भी उन्होंने सूचना दे के रखी है कि since the documents are like on the way, just about to be on the way to come into his hand, he has also given some necessary information to the police also. Okay, तो राइटर का जो फोल्डर का उनके पास रहने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि he just wants to spend some time with Ausable and he wants to write a very interesting article about the life of a detective, especially about Ausable. कि ये Ausable जो डिटेक्टिव हैं जिन्होंने लाइक एक अपॉइंटमेंट दिया है, ठीक है, उसके साथ टाइम बिताने का थोड़ा बहुत, तो उसका लाइफ कैसा है, डिटेक्टिव क्या क्या कारनामे करता है अपनी लाइफ में, क्या काम करता है और किस ढंग से वो काम करता है, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल वो लिखना चाहता है. इसलिए ये राइटर उनके पास Ausable के पास आया है. ओके, and that's why they are both together. Right? So when they are about to enter in the office में जब वो एंटर होने की तैयारी करते हैं, और literally Ausable when first enters into his office, he opens the door and he suddenly finds that there is another man also standing in the office, a thin looking man, an average looking man. ठीक है, ये इंसान जो ऑफिस में खड़ा है वो भी कोई ज्यादा हैंडसम नहीं है, एक दुबला पतला सा इंसान है, लेकिन उसके हाथ में है एक गन है, उसके हाथ में एक पिस्तौल है. ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस कैरेक्टर की, मैक्स. ही इज ऑल्सो अ डिटेक्टिव, अनदर सीक्रेट एजेंट, लेकिन यहाँ पे उसकी जो भूमिका है वो नेगेटिव टाइप की है. तो मैक्स सडनली ये ऑफिस के अंदर कैसे आया, वो तो ऑब्वियसली एक मिस्ट्री है अभी तक, जो मैक्स खुद ही आगे जाके बताने वाला है कि वो किस तरह से अंदर एंटर हुए. बट ऑब्वियसली Ausable का ऑफिस है और कोई अनजान आदमी इस तरह से अंदर आके घुस गया है और उसमें भी हाथ में पिस्तौल है, तो Ausable थोड़ा सा घबरा जाता है. The writer Fowler was also very frightened to see this situation, the scene. उन्होंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑफिस में अंदर एंटर करेंगे तो ऐसा सीन देखने को मिलेगा, तो दोनों घबराए हुए हैं. बट हियर वी हैव टू लुक एट द फैक्ट दैट डिटेक्टिव जो होता है, खास करके यहाँ पे Ausable की हम बात करेंगे, कि as soon as he gets into a difficult situation, his brain starts working. उसका दिमाग जो है वो काम करना शुरू कर देता है कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए. तो सबसे पहले तो टाइम बाय करने के लिए वो मैक्स को थोड़ा बातचीत में उलझा के रखता है, so that when he talks with him, he has enough time to think what to do and how to do it, okay, in order to come out from this situation. तो बातों बातों में ये एक्चुअली मैक्स को पूछ लेता है, एक नाटक करता है, सरप्राइज दिखने का नाटक करता है कि मैं बहुत हैरान हूं कि तुम इस तरह से मेरी ऑफिस में किस तरह से एंटर हुए. तो मैक्स इसको सामने जवाब देता है कि ही was able to enter into his office through a pass key. उसके पास एक पास की हुआ करता था
ठीक है, जो कोड वर्ड वाला जो चाबी होता है शायद उसकी वो बात कर रहा है। तो वो पास की से यहाँ पे एंटर होकर, और क्योंकि वो भी एक सीक्रेट एजेंट है इसलिए probably he might have the pass key to enter into this room. Somehow he managed to get that pass key to enter into this room. ऐसा मैक्स ऑसिबल को बताता है। ऑसिबल वापस उसको ये बताता है कि ये तो मुझे ये लगा कि तुम मेरी बैल्कनी से आए होंगे, पास की से नहीं लेकिन बैल्कनी से आए होंगे जो कि ऑफिस के पीछे है। अब मैं आपको यहाँ पे खास एक चीज बता दूं कि एक्चुअली ऐसा कोई बैल्कनी ऑसिबल की ऑफिस में नहीं है। देयर इज नो सच बैल्कनी दैट एग्जिस्ट्स इनटू द बैक साइड ऑफ ऑसिबल्स ऑफिस। ये सिर्फ बात कर रहा है उसको फंसाने के लिए कि मुझे लगा कि तुम बैल्कनी के थ्रू आए होंगे, और वो पीछे इशारा करता है कि ऑफिस के पीछे की साइड है, ठीक है, पीछे की जो दीवार है वहां पे एक विंडो है। वो विंडो लाइक खोल के, ठीक है, उसके अगर बाहर जाएंगे तो वो विंडो जो है बालकनी में खुलती है। ऐसा वो कन्विंस कराना चाहता था मैक्स को कि इसी महीने में एक और इंसान भी मेरे रूम में इस तरह से घुस के आया था, ठीक है, बैल्कनी के थ्रू। एक कोई चोर जैसा इंसान है जो वो इस ऑफिस के अंदर घुस के आया था, और उसके बाद मैंने होटल वाले को कंप्लेन भी की थी, होटल का जो मैनेजमेंट है उनको कंप्लेन भी किया था कि ये बैल्कनी जो है वो उसको बंद करवा दो, क्योंकि ये सीक्रेट एजेंट का ऑफिस है और यहाँ पे कोई भी कैसे भी करके एंटर हो सकता है, तो उसको जरा कृपया करके आप जरा बंद करवा दीजिए। ऐसा मैंने इनको कंप्लेन किया था, लेकिन फिर भी वो मैनेजमेंट ने पता नहीं कुछ नहीं किया है अभी तक, और मुझे वापस उनको कंप्लेन करना पड़ेगा। और मुझे ये लगा कि तुम भी, वो मैक्स को ऐसा बोल रहा है कि तुम भी इस तरह से बैल्कनी से ही आए होंगे। तो इस तरह से उसने मैक्स के दिमाग में ऐसा पिक्चर खड़ा कर दिया कि ऑफिस के पीछे जो विंडो है, यानी पीछे की दीवार पे जो विंडो है, उसको ओपन करने के बाद हम बैल्कनी में जा सकते हैं। That's a sort of picture that he created in Max's mind, which is very, very important in order to defeat him. उसको हराने के लिए, इस मुसीबत से बाहर आने के लिए उसको ये दिमाग में पिक्चर दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्टोरी आगे बढ़ रही है कि अभी भी जब ये सारी बातचीत चल रही है तो उस वक्त मैक्स जो है वो पिस्टल जो है ये दोनों के सामने, ऑसिबल और फॉलर के सामने ही ताक के खड़ा है, ठीक है, ताकि दोनों में से कोई भी चालाकी ना कर पाए। तो मैक्स वाज ऑब्वियसली लुकिंग वेरी वेरी अलर्ट इन द सिचुएशन। लेकिन उसी वक्त, थोड़ी देर के बाद, ये बातचीत जब चल रही होती है, उसी वक्त मेन डोर के ऊपर नॉकिंग होती है। देयर वाज अ नॉक ऑन द मेन डोर ऑफ द ऑफिस एंड सडनली ऑसिबल फाउंड द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैप मैक्स। मैक्स को फंसाने का ऑसिबल को अपॉर्चुनिटी मिल गया, ठीक है। वो मैक्स को ये बताता है कि मैंने एक्चुअली, क्योंकि उसको पता है कि मैक्स वो जो मिसाइल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेने के लिए आया है। मैक्स ने उसको क्लियर कर दिया था कि मैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ, तुम्हें मुझे देने होंगे वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा वो धमकी भी दिया था बीच में। तो ऑब्वियसली ऑसिबल नोज इट वेरी वेल, ठीक है। लेकिन ऑसिबल अब क्योंकि दरवाजे पर नॉकिंग हो रही है तो मैक्स को बता रहा है कि वो डॉक्यूमेंट का प्रोटेक्शन के लिए मैंने एक्चुअली क्या है कि पुलिस बुला के रखी थी, ठीक है, कि सेफली वो डॉक्यूमेंट्स मेरे तक पहुंच पाए, इसलिए पुलिस के थ्रू मैंने उनको मंगवाया था। तो शायद पुलिस आ गई है अभी, ओके। अब तुम्हें अगर पुलिस से, क्योंकि मेरे साथ इस तरह से तुम पिस्तौल ताक के खड़े रहोगे तो पुलिस वैसे भी तुम्हें पकड़ लेगी। डॉक्यूमेंट तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुलिस से बचना है तुम्हें, ठीक है। तो वो बैल्कनी में चले जाओ, जो पीछे की साइड, जो अभी तक हम बालकनी की बात कर रहे थे, ठीक है, खिड़की का दरवाजा खोलोगे तो वो बालकनी में खुलता है, वहां पे चले जाओगे, ठीक है, और वहां पे थोड़ी देर रहोगे जब तक पुलिस यहां से चली नहीं जाती, उसके बाद तुम यहाँ पे रूम में वापिस आ जाओ। So obviously because he has that picture in his mind, Max, okay, he was, क्योंकि वो अभी फंसा हुआ है इसलिए तुरंत वो बैल्कनी में जाने के लिए तैयार हो जाता है, राइट। एंड देन प्रॉम्प्टली, ये सारी घटनाएं कुछ ही सेकंड्स में हो जाती है। प्रॉम्प्टली he opens the door of the window, he puts his foot outside, he did not know that there was no balcony, he instantly fell down out of the window,
ओके, और जोर से आवाज आती है उसके नीचे गिरने की। हमें याद रखना है कि ये ऑफिस जो है 6th फ्लोर पे है, बैल्कनी नहीं है पीछे। मैक्स ये समझ के पीछे गया कि बैल्कनी है, उसने पांव ऐसे रखा, उसने अपना बैलेंस गंवा दिया और सीधा वो नीचे ही गिरा, क्योंकि खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। And then he instantly died. That's how the story comes to an end. And that's how we come to know that despite the fact that Oswald was looking ugly, he was looking fetish, he was not a very popular detective, he's not having a very good office also, but still he is very, very intelligent. So whenever you have a life-threatening emergency in your life, okay, your intelligence only is going to save you and nothing else. तो सबसे जो बड़ी ताकत होती है वो है हमारा दिमाग। इसी मैसेज के साथ जो है ये स्टोरी खत्म होता है। आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड द स्टोरी, एंड स्टिल इफ यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी यू माइट स्टिल वांट टू रीड द स्टोरी फॉर अबाउट 2 times फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मोबाइल ऐप के जरिए आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। तो यहाँ पे ये स्टोरी का, ये चैप्टर का जो ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। Okay, thank you very much for your time to watch this video. Okay, and do take very good care of yourself. Thank you.